वी नीड टू हाईलाइट कि कौन ज़्यादा हाई रिस्क पे अच्छा लंग कैंसर के। ओके जैसे हाईलाइट किया सर ने कि स्मोकिंग मैक्सिमम 50 to 60% कॉजेस विल बी रिलेटेड टू स्मोकिंग। स्मोकिंग में एक कैरेक्टर आता है दैट इज पैक ईयर। ओके So those who are having number of pack cigarettes smoking per day into years, जो ईयर में जितने पैक्स होते हैं we can multiply with the years. या So वो अगर 20 से आगे जाते पैक ईयर, so they are very much high risk to developing into lung cancer. प्रिसिजन हैज एंटर्ड एवरीवेयर इन ऑन्कोलॉजी। अच्छा आपका डायग्नोसिस में प्रिसिजन आ गया है। पहले हम सिर्फ हिस्टोपैथ देखते थे, अब हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आगे के टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें प्रिसिजन आ गया है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज में जैसे सर ने बोला, गोरे सर ने, कि सर्जिकल है तो रोबोटिक्स हो रहा है, वैट्स हो रहा है, नॉन इन्वेजिव मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। रेडिएशन में एसबीआरटी है, आईजीआरटी है, आईएस, बहुत सारे नए नए टेक्निक्स हैं। कीमोथेरेपी में सिर्फ कीमोथेरेपी पे हम लोग रिलाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग टारगेटेड ओरल थेरेपीज दे रहे हैं। टू मोर डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो हमारे इंडियन सिनेरियो में ज़्यादा रेलेवेंट हैं, वो है कि एवरेज एज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूडिंग लंग कैंसर इज ऑलमोस्ट 10 years अर्लियर। सो अगर लंग कैंसर का एवरेज एज यूएस में 60-65 है, तो हमारे यहाँ 50-55 में द डेमोग्राफिक डेटा विच वी हैव। There might be some genetical reasons because this is even true in the breast cancer also. खांसी चल रही है, 1 महीने से नॉर्मल खांसी रहेगी तो 8 दिन में 15 दिन में चली जानी चाहिए, लेकिन 1 महीने तक खांसी चल रही है, खून आ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, ये सब सिम्टम्स प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। During COVID, what happened was many patients were coming with cough symptoms. Yes. And it was a generalized CT scans which were happening for all patients, almost all patients. बहुत सारे पेशेंट जो कोविड के लिए आए और जो शायद स्मोकर थे या नॉन स्मोकर थे, उनको अर्ली स्टेज में लंग कैंसर डिटेक्ट हुए, क्योंकि उनका CT स्कैन हुआ। रोबोटिक सर्जरी के बाद आपके लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट्स है वो काफी कम हो। 15 साल पहले पेशेंट 1 दिन कीमो के लिए और 5 दिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए एडमिट रहता था। अच्छा आज पेशेंट 4 घंटे एडमिट रह के घर चला जाता है। For young generation, stay away from vape, e-cigarette, and advertisement which are misguiding you. lung cancer, often silent until it's too late, one of the deadliest battle fought within the human body. It's just not a disease of smokers or statistics. It's a deeply personal struggle that changes life in an instant. In today's episode, we bring you stories, science, and strength as we uncover the truths, challenges, the mystery, the myth, and the spotlight of hope that still breathes within the fight against lung cancer. For that, today we have with us the famous oncology panel of Deccan Gymkhana, Dr. Tushar Patil, renowned medical oncologist with 15 plus years of experience in adult, pediatric, and hematologic cancers. Our next guest is Dr. Vinod Gore, a leading cancer surgeon who specializes in robotic oncosurgeries with an exceptional precision and experience of over a decade. He blends the surgical precision with cutting-edge cancer care. And last but not the least, our very own Dr. Jagdish Shejal, the famous radiation oncologist with over 9 plus years of experience and expertise, who specializes in the cutting-edge radiotherapy techniques like SRT with hyper-arc, IMRT, and IGRT for precision cancer care. Let's dive deep into today's conversation about lung cancer. Hello and welcome to Sayadri Health Talks. I'm Dr. Tushita, and today our topic is lung cancer. And for that, we have with us back on the panel DJ doctors of oncology. Doctors, welcome to today's podcast. Second time, and it's so great to have you all. So, how are you? How is it happening, and how is it doing? Yeah, absolutely fine. Great to be here again. Yes, we badly wanted to have you on the panel again. So, and I think lung cancer, one of the topics which really we need to discuss, because the incidences of lung cancer is quite high in India, considering the very obvious factors which leads to it. So, before we get into the depth about the treatment aspect and the diagnosis of lung cancer, let's start with something very basic, which is regards to lung cancer, that we have heard about small cell lung cancer, then we have heard about non-small cell lung cancers. So, what are these, and
Eventually, we'll talk about the symptoms and the etiology. So, I keep this question open to the panel: small cell lung cancer and non-small cell lung cancer. So lung cancer has been traditionally divided into two types. One is small cell and the other is non-small cell. Essentially, they are the types seen on the microscope. The HNE, what we say, hematoxylin and eosin staining that we come across. Small cell looking like a very small cancerous cell, and it's supposed to be very, very aggressive. Most of them present with metastatic or stage 4 disease, and treatment also becomes, initially the treatment may be very rewarding and the patient may get very good symptom relief with chemotherapy, but eventually within a fraction of few weeks or few months the disease comes back with a greater power and the entire system collapses. The average survival here in small cell just remains around 1.5 years. Oh. As opposed to that, the non-small cell, which is a little less aggressive variant, and in non-small cell we have again two major types. One is a squamous type and the other is a non-squamous type. Okay. And these again have different modalities of treatment, a little bit different modalities of treatment for each stage and type we say. There are few other subtypifications also, but we need not go into the details. Likewise, this cancer subtype is there, small cell, non-small cell. As sir said, small cell are quite aggressive tumor रहते हैं वो, as compared to non-small cell. और उनका presentation भी usually advanced stage में ही रहता है. So, we don't see them in the initial stages? लंग कैंसर यूजुअली एडवांस स्टेज में ही बहुत बार डायग्नोज होते हैं. अच्छा, and what is the typical, I mean, what is the cause behind it कि मतलब इतना delayed क्यों होता है? बिकॉज लंग कैंसर इज वन ऑफ द वेरी एग्रेसिव कैंसर. अच्छा. सो वो बहुत जल्दी फैल जाता Spreads है, very बहुत fast. स्प्रेड बहुत जल्दी होता है. तो उनका कैंसर होने का और चौथे स्टेज में जाने का जो टाइम है वो बहुत कम है. कितना होता है सर, मतलब यूजुअली? वो एग्जैक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्दी बाकी कैंसर की तुलना में बहुत जल्दी वो फैल जाता है. Usually we can say with correlation with symptom. Patient को जब मतलब किसी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को जब तक सिम्टम्स है, लाइक कफ है, ब्रेथलेसनेस है, या फिर दे माइट बी फीलिंग फटीग, जनरलाइज वीकनेस, कमजोरी आना है, उसके साथ बिना कुछ रीजन का वेट लॉस सडन हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर सिम्टम्स बट नॉट दैट स्पेसिफिक. या फिर खांसी में या थूक में खून निकलना, अच्छा, वो सिम्टम्स है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2-3 महीने तक निग्लेक्टिव होते हैं. अच्छा, जब तक पता चले तो, एंड एट दैट टाइम इट वुड हैव बीन स्प्रेड. और दूसरा एक का कारण है कि सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है कैंसर का वो है खांसी. खांसी और खून, बलगम में खून आना. अभी क्या है ना, खांसी तो बहुत बार होती हाँ है, जी. तो बहुत बार एक महीना तो उसी में चला जाता है कि लोगों को लगता है अरे चलो नॉर्मल सर्दी खांसी हो गई है. तो सर ये या जो फिर- आप बोल रहे हो ना कि स्पूटम में मतलब बलगम में खून आना, तो मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली इज दिस? आई मीन एवरी टाइम दे ब्रश और दे यू नो दे ट्राई टू क्लीन देयर टंग और दे कफ, एवरी टाइम द ब्लड नो, कम्स? इट इज नॉट इन ऑल पेशेंट्स. Okay. कुछ पेशेंट्स में खून आता है, कुछ पेशेंट में बलगम में खून भी नहीं आता, सिर्फ खांसी रहती है, ड्राई कफ रहता है. अच्छा. तो बहुत बार लोग निग्लेक्ट करते कह रहे चलो नॉर्मल सर्दी खांसी रहेगी, तो और ट्यूबरकुलोसिस के भी सिम्टम सेम रहते हाँ हैं. जी. तो इसीलिए बहुत बार ये कैंसर का कुछ हो सकता है, यहाँ तक सोच जब आती है सोच तो नहीं तब पहुंच तक पाती वो है. आगे के स्टेज में निकल. आई थिंक डिग्री ऑफ सस्पिशन मैटर करता है बहुत. अच्छा. सो अगर कोई स्मोकर है, जिसका कफ चल रहा है कई दिनों से, ब्लड आ रहा है, आवाज में चेंजेस आ गए हैं, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस Hoarseness वगैरह of डेवलप हो voice. या he has started developing something like bone pains, jaundice, by that time it is too late. So degree of suspicion ये पेशेंट की तरफ से एंड ट्रीटिंग डॉक्टर की तरफ से, दोनों की तरफ से होना चाहिए. Okay. बिकॉज मैक्सिमम टाइम जैसे डॉक्टर विनोद ने बोला कि पहले 1-2 महीना खांसी की ट्रीटमेंट करेंगे, फिर कोई लोग उनको टीबी की ट्रीटमेंट देते हैं 1-2-3 महीना, और उसके बाद जब बीमारी ठीक नहीं होती तब कोई बोलता है चलो आज इनका सीटी स्कैन करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, क्यों ठीक नहीं हो रहा है. सो आई थिंक डिग्री ऑफ सस्पिशन अगर पहले आ जाए तो शायद कुछ लोगों को हम जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे. सो इसके साथ और एक जैसे रीजन सर ने हाईलाइट किया, ट्यूबरकुलोसिस, जो इंडिया में काफी कॉमन है. सो वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम उसको डायरेक्टली लेबल करना एज अ मैलिग्नेंसी जो सिटी स्कैन में दिखता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीबी का ही ट्रीटमेंट लेते हैं. Okay. और ऐसा भी है कि ये सिम्टम होना भी जरूरत नहीं. किसी किसी स्टेज में असिम्टोमेटिक भी केसेस रहते हैं, दो दे आर हैविंग कैंसर, लंग कैंसर, बट मैक्सिमम टाइम जब तक वो कुछ आजू बाजू के ऑर्गन को परेशानी नहीं करता है तब तक उनको कुछ सिम्टम्स ही नहीं रहते. कुछ सिम्टम्स नहीं रहते. सो विदाउट दैट सिम्टम दे विल हैव दैट पीरियड, और बीच में जब वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बाकी ऑर्गन में जाके वहाँ पे डैमेज करना शुरू हो जाता है, या लोकली इतना बढ़ता है कि वो लोकली किसी ऑर्गन को डैमेज करता है, देन इट विल स्टार्ट सिम्टम्स. अच्छा, सो लंग कैंसर इज काइंड ऑफ दैट टाइप. It's a very tricky one. Notorious. Notorious. टू मोर डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो हमारे इंडियन सिनेरियो में ज़्यादा रेलेवेंट हैं वो है कि
एवरेज एज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूडिंग लंग कैंसर इज ऑलमोस्ट 10 years अर्लियर. सो अगर लंग As कैंसर compared का to एवरेज Western एज यूएस में 60-65 है, तो हमारे यहाँ 50-55 में देर आर सो मेनी पेशेंट्स whom we are seeing at the age of 40 and 45 getting lung cancer. I have treated one of Jagdish's patients, his associate, who is 29 years of age and suffering from stage 4 lung cancer. Today we've treated him last week only with chemotherapy. So इतना जल्दी है एंड अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है कि एक तो एवरेज एज कम है, यंगर पेशेंट्स हैं, एंड एग्रेसिव बायोलॉजी या डिजीज स्टेटस है जिसकी वजह से उनके आउटकम्स इतने अच्छे नहीं हैं. तो सर एज सर ऑल्सो सेड कि यू नो लंग कैंसर जो मतलब आप जैसे बोल रहे थे कि इंडियंस में इट इज लाइक 10 years बिफोर Correct. chances. Is it only related to ethnicity or is there any particular reason behind this? We've not been able to identify a particular reason for that. What we know is this is the demographic data which we have. But there might be some genetical reasons because this is even true in the breast cancer also. So बाकी सभी कैंसर में ऐसा ही है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में थोड़े लेट एज ग्रुप में होते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़े जल्दी होते हैं. So we are more susceptible to the cancer genetically. तो सर जैसे हम बोल रहे हैं ना कि it is very notorious. So you know it doesn't show. तो सर I mean what sir said was quite scary कि asymptomatic है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता. So if we really have to send out a message today that you know these are the red flags, what would that be? So we can categorize according to this means patient related या person related. These are not patient, these are person, normal person. अच्छा. So we need to highlight कि कौन ज़्यादा high risk पे अच्छा. लंग कैंसर के लिए. Okay. जैसे highlight किया सर ने कि smoking, maximum 50 to 60% causes will be related to smoking. Smoking. So smoking में एक character आता है that is pack year. Okay. So those who are having number of pack cigarettes smoking per day into years, जो year में जितने packs होते हैं, we can multiply with the years. Yeah. So वो अगर 20 से आगे जाते हैं pack year, so they are very much high risk to developing into lung cancer. Okay, it help us understand this a little better because there are a lot of people who will relate to this. Yes. So if a person is smoking 1 pack in a day, Day. so what would be the pack year? So 1 pack in a day for 10 years, so it will be 10 pack year. Okay. 1 pack a day for 20 years, Okay. it will be 20 pack year. Okay. If 1 pack in 2 days or 20 years, so it will be 10 pack year. So Okay. it is kind of multiplication or number of packs. आप into जितना year. ज़्यादा स्मोकिंग करते हो उतने चांसेस ज़्यादा रहेंगे. Chances To are. give you just the statistics, अगर 30 pack years है मतलब एक pack per day for 30 years consecutive है, the risk of development of a lung cancer as compared to a non-smoker is 50 times higher. 50 times. times higher. If the same is 40 pack years, the risk is 120 times higher. Oh my god. The risk would not decrease for the next 20 years after smoking cessation. Very important to understand. अगर कोई 15 या 20 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू करता है, 40 की उम्र में छोड़ता है, और उसको अगर कैंसर होता है 60 की उम्र में, तो इट इज पॉसिबल. कई लोग बोलते हैं सर मैंने तो 40 की एज में छोड़ दिया था. Why did I get a lung cancer at the age of 60? Because the chemical effect remains for next 20 to 30 years in the body. Very important to understand. So it's not that कि you have stopped smoking so एकदम नहीं, you are एकदम बंद नहीं एकदम होगा. उसके 100% इफेक्ट्स तो safe. आगे Risk- 20 risk साल तक एकदम से रहेंगे. बंद नहीं होता. Average age of a smoker is 6 to 10 years lesser lesser than a than the non-smoker. non-smoker. And there are so many non-cancerous cause what we say as ill effects of tobacco or smoking. अच्छा अच्छा. उसमें arterial blood pressure बढ़ना, so claudication those तो होना, are like कितने सारे है हैं. ही. So cancer तो एक पार्ट है, लेकिन नॉन कैंसरस भी बहुत सारे. स्ट्रोक बढ़ता है, हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ती है, ब्लड वेसल्स क्लॉग होते हैं, एस्थमा होता है, बहुत सारी COPD होता है, लंग डैमेज होता है, कितनी सारी चीजें हैं. So coming back to our questions कि पेशेंट को कैसे पता या पर्सन को कैसे पता कैसे चलेगा पता कि वो चलेगा? हाई रिस्क है. तो फर्स्ट थिंग इज द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड अच्छा. पैक ईयर, नंबर ऑफ पैक ईयर्स इट्स अच्छा. मोस्ट इम्पोर्टेंट. Okay. सेकंड थिंग इज दैट whenever you are having such a symptoms, जैसे हम हाईलाइट किए थे कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, persistent cough है, Blood in the sputum. हाँ, खून में ब्लड आ रहा है या वीकनेस आ रहा है, फटीग आ रहा है, सो यू शुड कंसिडर we should rule out any chronic causes there or not. Okay. So these are kind of जो symptoms. सिम्टम्स है वो 1 महीने से ज़्यादा कम नहीं हो रहे, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. दैट टाइम यू शुड इन्वेस्टिगेट. और क्योंकि खांसी चल रही है 1 महीने से, नॉर्मल खांसी रहेगी तो 8 दिन में 15 दिन में चली जानी चाहिए. लेकिन 1 महीने तक खांसी चल रही है, खून आ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है,
ये सब सिम्टम्स प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, दैट इज द रेड फ्लैग Flags for lung cancer. इट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी कैंसर एक्चुअली. आपको ब्रेस्ट लंप है, आपको जाके इन्वेस्टिगेट कराना है. वो कैंसर हो नहीं हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन्वेस्टिगेट इट, बिकॉज 4 out of 10 would turn out to be cancer. If you diagnose them early, detect them early, you'll be able to treat them, cure them, and hence the mortality of cancer will go down. So कैंसर नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैंसर का स्टेज और ट्रीटमेंट शायद हमारे हाथों में है. हमारे हाथों में है. और जो कॉजेस हम लोग कैंसर का डिस्कस कर रहे हैं, ओनली नॉन स्मोकिंग के भी अदर फैक्टर्स है. Okay. जैसे पैसिव स्मोकिंग है. हाँ, actually I was coming to that. स्मोकिंग तो नहीं है, Yeah. बट घर में कोई तो क्रोनिक कोई स्मोकर है smoke एंड कर यू आर रहा है. गेटिंग दैट पैसिव Passive smoking. नॉट विद द स्मोकिंग. जो चूल्हा जलता है, अच्छा. दैट इज अगेन काइंड ऑफ एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल. Okay, जो एयर पोल्यूशन है, हाँ. दैट इज अगेन रिस्क फैक्टर. Okay. किसी किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है, जैसे वेल्डिंग, केमिकल प्लांट में काम करने वाला है, पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हाँ जी. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, तो या फिर लकड़ी का रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट गेटिंग एक्सपोजर टू द फाइन पार्टिकल्स. Fine particles, They yes. are also again at the risk of developing. Asbestos इन is a शॉर्ट big- जहाँ भी Asbestos poisoning, yes. मेन रीजन इज धुआं. जहाँ भी धुआं निकलेगा तो कैंसर लंग का होने के चांसेस बढ़ जाते तो सर दिवाली पे क्या करें फिर? हैं. दिवाली के इवन दैट पोल्यूशन इज आल्सो कॉज. एनी एयर पोल्यूशन विथ स्मोक इज द कॉज फॉर द लंग कैंसर. और उसमें क्या है ना कि कुछ चीजें हैं स्मोकिंग के अलावा, बाकी चीजें हैं जो मेनली अपने पर्सनल हाथ में अपने नहीं है, लेकिन स्मोकिंग का जो रीजन है वो अपने हाथ में, और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. Avoid कर. अर्ली एज का जेनेटिक भी एक कॉज है. लंग कैंसर अच्छा So lung जेनेटिक cancer एसोसिएटेड. runs in families also? very rarely. वेरी रेयरली बट जेनेटिक स्मॉल हिस्सा हो म्यूटेशन, सकता है. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. नॉन स्मोकर में जो कैंसर होते हैं लंग के, उसमें शायद वो रीजंस हो सकते हैं. See, apart from smoking, पैसिव स्मोकिंग जो बोला, अभी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि पैसिव स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर बाय 3 times. अच्छा. एक नॉन स्मोकर है और एक पैसिव स्मोकर है, तो पैसिव स्मोकर कैन के chances higher है. 3 times हायर है नॉन स्मोकर से. सो आपको पैसिव स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करना है. घर पे तो ऑफिस स्पेस में भी अवॉइड करना है कि आपके कलीग कोई स्मोक कर रहे हैं और आपको होने का डोका है, बॉयकॉट देम. वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस. Yeah, because most of the time it is like I'm not smoking, but you know, I'm standing there. केमिकल इंडस्ट्री में आप पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स पहनिए, जहाँ पे चाहे वो एस्बेस्टोस हो, चाहे पेंट हो, चाहे कोई और केमिकल्स हो, wherever the exposure to fumes and dust or chemicals is going to happen for a prolonged duration of time, risk of any cancer including lung cancer, some of the other cancers like bladder cancer, kidney cancer increases. Increases. So the personal protective devices, the what we say as factory workers, they would need these things to so that they can avoid और डिक्रीज और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर. ये जो चीजें है कि सर ने जो बताई, पाटिल सर ने की, बहुत सारी चीजें जो अवॉइड कर सकते हैं. पैसिव स्मोकिंग आप अवॉइड कर सकते हो, या इंडस्ट्रीज में आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन सकते हो. देखिए, जब तक सांसें है तब तक जिंदगी है. जिंदगी तब तक चलेगी जब तक सांसें चल रही है. और लंग सांसों से रिलेटेड है. लंग खराब हो गया तो सांसें रुक जाएगी. तो लोगों को ये समझना चाहिए कि मेन रीजन है 50% पेशेंट में स्मोकिंग का. तो स्मोकिंग करके आप धुआं निकालोगे तो आग तो लगने वाली है और लंग तो जलने वाले हैं. लंग जलेंगे तो कैंसर होगा. तो एटलीस्ट वो जो प्रिवेंटेबल कॉज है, जो सबसे आसान है, वी शुड प्रिवेंट द स्मोकिंग. एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट to deal with टू डील विद द लंग कैंसर. lung क्योंकि cancer. लंग और कैंसर that एक बार for that होता है moment, तो अभी you भी know, लंग कैंसर ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, इन स्पाइट ऑफ वेरियस एडवांसेस इन द advances ऑन्कोलॉजी. which we have. एक लंग कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें रिजल्ट्स अभी भी बहुत खराब है. तो अच्छा. बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट. 50% लंग कैंसर आप सिर्फ स्मोकिंग अवॉइड करके रोक सकते. रोक तो सकते हैं. इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि स्क्रीनिंग कैसे करें. हाँ, actually I was Yeah. thinking कि you know what was my question Yes. was, I think he's a mind Yeah. reader. So what I wanted to ask is कि fine, so the loud message goes out is that the smoking has to be stopped at the earliest. That might reduce the incident, but it will not completely eliminate the chances of Yes. having a cancer. Coming to the second part of it, like as sir said, people who are working at a paint industry or welding industry or asbestos and all that stuff. So for these patients, do we recommend? I would not say patients. For these people, do we recommend any specific test that can be done to rule out, maybe an annually or once in 5 years or something like? Do we have anything like that? लंग कैंसर में जो है ना, लो
एक्सपोजर वाला सिटी स्कैन लेते हैं। अच्छा, low dose Low CT, dose- low low dose dose CT CT scan लेते हैं। for people who are exposed to smoke for a very long time, above 55 years of age. It is used as a screening modality. but above 55. Yeah, that's the Yeah, average the high age risk when- population है। high risk population, because everyone cannot be subjected to a low dose CT scan once in a year, because that also causes some radiation exposure. Yeah, that's a So radiation high risk population being subjected to a low dose CT scan where we can pick up small nodules, and these can be further investigated whether they are cancer or not. जैसे कि नंबर ऑफ पैक ईयर अगर कोई हाई रिस्क पे है तो दे शुड डू द लो डोज सिटी स्कैन, और जो उनका प्रोफेशन ऐसा है कि दे आर एक्सपोजिंग टू दिस हार्मफुल केमिकल, दे शुड गो विद द लो डोज सिटी स्कैन। बट इंडिया में ऐसा है कि लो डोज सिटी का जो है, दैट इंटरेस्टिंग स्टडी हैज बीन डन एट मुंबई। उन्होंने जो हाई रिस्क पॉपुलेशन था 20 पैक ईयर के अबव वाले जो थे 350 पेशेंट्स का लो डोज सिटी करवाया था। आउट ऑफ विच उन्होंने 7 लोगों में छोटे लंग नोडुल्स, सस्पिशियस लंग नोडुल आइडेंटिफाई किए। अच्छा, 7 लोगों का बायोप्सी हुआ 100%, 7 out of 7 टर्न आउट टू बी मैलिग्नेंट। सो दैट इज हाउ, मतलब लो डोज that's how सिटी it से is. अप टू जो वेस्टर्न स्टडीज है, मोर देन 85 to 90% स्टेज 1 का पिकअप रेट है। okay, सो वी कैन पिकअप इन अर्ली स्टेज, और अर्ली स्टेज का पिकअप का ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि दैट क्योर रेट इज अबाउट 90% oh wonderful. विद मिनिमम ट्रीटमेंट। रादर सिर्फ अर्ली स्टेज में ही लंग का कैंसर क्योर होता है, थोड़ा भी आगे के स्टेज में गया But तो cure नहीं। unfortunately, report हमेशा final, I mean late stages. और unfortunately we cannot recommend CT scan for all the people. So only high risk people we can recommend. we can recover. Just one interesting fact I'd like to point out, that during COVID what happened was many patients were coming with cough symptoms. Yes. And it was a generalized CT scans which were happening for all patients, almost all patients when they were getting admitted. So उस समय बहुत सारे पेशेंट जो कोविड के लिए आए और जो शायद स्मोकर थे या नॉन स्मोकर थे, उनको अर्ली स्टेज में लंग कैंसर डिटेक्ट हुए क्योंकि उनका CT स्कैन हुआ। So we can say COVID was blessing for some. So possibly Maybe for that time, any incidental lung I had a cancers were patient diagnosed. who was treated for lymphoma. अच्छा. 120 kg hefty man. Okay. लिम्फोमा क्योर होके 4 साल हो गए, फॉलोअप के लिए आ रहे थे और कोविड के दरमियान यहाँ पे एडमिट हुए ब्रेथलेसनेस के साथ में। सीटी हुआ, सीटी में एक लंग नोड्यूल पिकअप हुआ और कहीं कोई डिजीज नहीं था। ही गॉट क्योर्ड ऑफ कोविड। देन सब्सिक्वेंटली हमने बायोप्सी की, बायोप्सी पॉजिटिव आई, फिर विनोद सर ने उनको ऑपरेट किया। ही इज डिजीज फ्री, ही हैड 2 cancers, one is lymphoma cured and lung cancer also cured thanks to COVID that we could pick it up. Otherwise 1 सेंटीमीटर के लंग नोड्यूल के लिए कोई सिम्टम्स नहीं है। कोई symptoms symptoms नहीं And that is where is the importance of doing low dose CT scan for patients who may not have any symptoms and who are still at a very high risk of development of cancer. Okay, जो chronic Identifying smokers. high risk person is the key. okay, okay, okay. One more thing about interesting thing. अभी as you have seen, lung cancer का main reason है smoke. So either cigarette smoke or pollution. environmental के pollution. through, हाँ. So pollution में what we see in the future, pollution कम होने वाला है. So that reason will lung cancer का incidence कम दिखाई दे सकता है future Okay, में. okay. Because you have seen कि एक दौर था कि जब हम खाना बनाते थे तो लकड़ी जला के खाना बनाते Correct. थे. We have seen the end of that era. End of that era. Almost every house is now having LPG gas. Yes, true. So वो जो धुआं था वो कम हो गया. वो कम हो So गया. वो हमारे जनरेशन में हमारे आंखों के सामने देखा है. That's transition. Now next era, I can say this is the beginning of the end of the era of combustion. Combustion, So because we are जो moving to the पेट्रोल और डीजल electrical, से जो yeah, combustion है, electric cars, yes. उसके एरा का अंत चालू हुआ है. तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी जो आएगी, जो अभी इलेक्ट्रिक्स व्हीकल आ रहे हैं, Correct. सोलार पे Solar चलने पे वाले चलने आने वाले वाले जो आ रहे हैं. हैं. तो जब हम सोलार से जो एनर्जी तैयार होगी, दैट विल बी मोर क्लीन एनर्जी एंड दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस पोल्यूशन. एंड जैसे कि हाइड्रोजन है, ये बाकी चीजों पे चलने वाली गाड़ियां आएंगी तो ये कंबशन कम होगा. और दिस चेंज विल हैपन इन फ्रंट ऑफ अस वेरी ड्रास्टिकली, वेरी फास्ट. सो यू विल सी द massive reduction in other the factors air which are pollution. contributing, So that reason will be That will reduced. be reduced. लेकिन चिंता एक बात की है कि जो स्मोकिंग से होने वाला इंसिडेंस है वो कम नहीं होने वाला. वो तो I mean one has to हमने देखा है कि reduce. टोबैको च्यूइंग कम हुआ, गुटखा कम हुआ. लास्ट 10 years का डाटा देखेंगे, देयर इज अ reduction in the tobacco chewing. अच्छा. There is a reduction in the gutka chewing, and thanks to the gutka ban, because of that, definitely that chewing rate has been decreased, Decreased. and oral malignancy incidence has decreased. Okay. लेकिन डाटा इज सजेस्टिंग दैट स्मोकिंग का रेट बढ़ रहा है, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में ज़्यादा बढ़ रहा है. आजकल यंग फीमेल्स में, लड़कियों में
स्मोकिंग का इंसिडेंस ज़्यादा काफी high है एंड दोज पीपल विल गेट द कैंसर. That saying goes, फिक्र को धुएं में उड़ा दो. That is holding true. या So, सो sir के साथ वो एक agree चिंता की बात है कि यंग जनरेशन में स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है. तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर कम होगा और दूसरी तरफ स्मोकिंग से बढ़ने वाला है. सो व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज स्मोकिंग कम करेंगे तो लंग कैंसर थोड़ा कम हो सकता है. यस सो उसी हिसाब से जो अपना नेक्स्ट जो जनरेशन में एक थोड़ा हाइप आ रहा है वेप स्मोकिंग Vape का smoking, या yes. और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का Yeah, जो yeah, है yeah. एंड दे ब्रांड इट एज No, tobacco नॉन free. टॉक्सिक या टोबैको फ्री बट Correct. स्टिल इट इज द कॉज ऑफ कैंसर कॉज ऑफ हार्ट डिसीजेस Is it more riskier than cigarettes? we cannot comment I mean we cannot say it is as more riskier but it is as equal एज इक्वल क्योंकि एक डिफरेंस रहता है टोबैको और अल्कोहल में. अच्छा अल्कोहल आप कम मात्रा में लोगे तो बॉडी पे डैमेज नहीं करेगा. अच्छा मे बी सम स्टडीज सजेस्ट दैट वाइन इन अ मॉडरेट फॉर्म इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट. और आप बहुत ज्यादा पियोगे तो सिरोसिस होगा. but heart- then all that are still in debate. We Yeah, but really लेकिन cannot बहुत कम मात्रा में रहेगा अल्कोहल. तो अल्कोहल का इफेक्ट कैसा है, आप जितना ज्यादा पियोगे उतना ही उतना रहेगा. है. टोबैको का कैसा है, आप टोबैको कम मात्रा में भी लोगे तो भी उसके इफेक्ट आते हैं. तो इवन ये बाकी के स्मोकिंग के जो फॉर्म्स आ रहे हैं ना, ई सिगरेट वगैरह, तो उससे भी वही कैंसर vaping, होगा. e-cigarettes. तो दैट विल नॉट हैव अ जीरो रिस्क. आप यूएस यूरोप में देखिए, हाँ, the vaping is very high. The people consumption of alcohol is more than 90% people consume some or the other form of alcohol, but in moderate quantities. अगर moderate, not everybody gets cirrhosis and related lung cancer or other effects on the liver. लेकिन smoking का ऐसा नहीं. Even a what we say part smoking, little bit of smoking is always injurious. One interesting fact कि जो आपका टोबैको स्मोक है उसके अंदर कम से कम 4000 केमिकल्स हैं और उसमें से more than 40 are cancer causing elements. Oh my god. More than 40. And hence the risk associated with tobacco smoking goes beyond that smoke to every organ, literally every organ. So many patients we have found कि शुरुआत में स्मोकिंग की वजह से फेरिंग्स का कैंसर होता है, अच्छा थ्रोट का जो थ्रोट कैंसर. उसके बाद नीचे इसोफेगस का कैंसर होता है, उसके बाद और कैंसर्स होते हैं. इसको फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं क्योंकि केमिकल का इफेक्ट फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग टू द एनस, हर जगह केमिकल का इफेक्ट जाने वाला है आपका. और कई बार आज ये कैंसर हुआ, 5 साल के बाद दूसरा, 3-4 साल के बाद तीसरा. पीपल आर फेड अप ऑफ देयर लाइफ. जस्ट वो पहला वाला स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल अवॉइड किया होता तो शायद ये नहीं हो पाता. सो सर और एक बात जो बहुत होती है, सो आई विल नॉट टेक द नेम, बट सो एंड सो सेलिब्रिटी स्मोक सो मच, उसको कैंसर नहीं हुआ. मैं तो एक सिगरेट हुआ पीता ना हूँ अभी. दिन को. yes हुआ, we know a famous celebrity who because of smoking has developed. Unfortunately, he could go through it because of advancements of the treatment. Again, he's possibly cured now. By So what medical message do you have for them? इसी हिसाब से इस साल का जो नो टोबैको डे है, दैट थीम लाइन इज दैट जो स्मोकिंग यूजुअली एडवर्टाइजमेंट में दे विल शो इट एज अ काइंड ऑफ अपीलिंग. लोगों को अलग टाइप से वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि वो थोड़ा लोगों के ऊपर एक यंग जनरेशन के माइंड पे ऊपर एक छाप छोड़ता है. सो नाउ दे हैव डन इज थिंग इज दैट उसको अनमास्क करना है. जो स्मोकिंग जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है विद एडवर्टाइजमेंट, उसको अनमास्क करना है. दैट इज व्हाट द थीम लाइन ऑफ दिस ईयर्स No Tobacco Day. No Tobacco Day. So sir, as we spoke about, Patil sir told about the case of COVID, who came and we got a CT done, and fortunately, because of that CT, one small nodule was Yeah, detected. There was a lot of confusion which COVID brought along with with it. One of those were कि post COVID, because it was more kind of breathlessness and all that stuff, which were the symptoms of COVID. So has the incidence of COVID, I mean people who suffered COVID, are they at greater risk of lung cancer? I don't think so. No, That there is will no be such. correlation. Or There is no vaccines? correlation now. Because internet was flooded with all such It's possibly misleading. because many CTs were done and people were picked up of cancer, lung cancer or other cancers because CT हो रहा था. हो रहा तो था. It is an indirect correlation. कोविड is के not टाइम directly में linked to. इंसिडेंस हैज गॉन अप जस्ट बिकॉज ऑफ सिटी स्कैन. नहीं कहते लेकिन- कोविड में आपका लंग्स कमजोर हो जाता है. लेकिन उसके बाद अभी 3-4 साल में जो देख रहे हैं, ऐसा तो हम ज्यादा देखते नहीं कि
पहले कोविड हुआ था वो पेशेंट में ज्यादा लंग हाँ, कैंसर हाँ, है, exactly. ऐसा नहीं दिखाई द देता। पॉइंट यू आर आस्किंग हाँ. कोविड के वजह से कैंसर होगा तो हाँ. आंसर इज नो लाइकली The answer is रिलेशन not नहीं है, likely. बट हाँ. कोविड की वजह से लंग डैमेज है या किसी की वजह से कुछ लंग डैमेज है, एंड अगेन इफ वी बिकॉज ऑफ सम एनी अदर रीजन ही डेवलप द कैंसर, ट्रीटमेंट के टाइम पे दिस फैक्टर में कम इनटू द प्ले। Okay. उसके वजह से ट्रीटमेंट एग्रेसिव कर पाते नहीं कर पाते, छोटा लीजन है सर्जिकली फिटनेस मिलता है या नहीं मिलता है, बाकी कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी टॉलरेंसी में कुछ इशू आता है, रेडिएशन इंड्यूस लंग डैमेज में कुछ इश्यूज आते हैं। सो बेसलाइन जो है when we are treating, so these factors matters a lot, उनका लंग का सिचुएशन कैसा है, वेट कैसा है, पेशेंट का ओवरऑल फिटनेस Overall कैसा है, fitness कैसा है? that matters a lot during while we are treating While these we are patients. treating this. So, sir, as you know, during the beginning of the conversation, we said that lung cancer is the only cancer which probably gets reported at a very advanced stage. And there is a typical understanding that during this advanced stages, the surgery is taken as a line of treatment. I mean, I don't know if it is true or false, but then how frequently do you see such cases, and at what stage of lung cancer do we opt for surgeries? या तो लंग कैंसर में हम जो सर्जरी करते हैं वो सिर्फ अर्ली स्टेजेस नहीं होती है, Okay. पहले या दूसरे स्टेज में। जब थर्ड या फोर्थ स्टेज में कैंसर जाता है तो सर्जरी नहीं होती, अच्छा. इसीलिए बहुत कम पेशेंट है जिनमें सर्जरी कर पाते हैं। Okay. और वही पेशेंट है जिसमें सर्जरी कर पाते हैं उसमें क्योर रेट अच्छे है, ऑलमोस्ट 90% तक क्योर रेट रहता है, क्योंकि वो पेशेंट में सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ होता है। So it's again a multidisciplinary approach which यस, goes. तो अर्ली स्टेजेस में ही सर्जरी हो सकती है। वंस कैंसर गोज इन द फोर्थ स्टेज देयर इज नो यूज ऑफ सर्जरी, आई कैन से देयर इज नो यूज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें एडवांस स्टेजेस में अभी भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। No, but I will differ with sir's opinion in this regard. Because as a surgeon's mindset, he will always see कि operable है तो is best. But nowadays with advances, means sir will be also, I think, agree with me. Means immunotherapy, targeted therapy, and also with the radiation advances, even patient with locally advanced or metastatic disease, we can have a good reasonable survival, और उसके साथ साथ quality of life जो So patient को increase in चाहिए। lifespan ट्रीटमेंट करना जरूरी and तो है, better quality of इवन life. दोज पेशेंट हु आर नॉट हैविंग क्यूर उन्हें पैलेटिव ट्रीटमेंट चलती है और वो करनी जरूरी है, लेकिन अभी तक बाकी कैंसर में जैसा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है, लिम्फोमा के कैंसर है, 15 साल 20 साल 25 साल जीते हैं, वैसे when it comes to the lung cancer we speak only in the weeks and months. Every cancer including lung cancer has come out from that dismal outcome to a far better outcome. अगर हम देखें एवरेज लंग कैंसर एडवांस स्टेज कंसीडर करें जैसे सर ने बोला को एवरेज सर्वाइवल 6 से 8 महीने था ऑलमोस्ट 15 इयर्स बैक। फिर आए टाइप्स ऑफ कैंसर जो हमने डिस्कस किया, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, अलग अलग टाइप की अलग अलग ट्रीटमेंट डिफाइन होती गई, तो वो सर्वाइवल 6-8 महीने से बढ़ के 1.5 साल हो गया। उसके बाद आगे के ट्रीटमेंट्स आए जो एकदम व्हाट वी से प्रिसाइज ट्रीटमेंट्स थे। उसके बाद आज लंग कैंसर का एवरेज सर्वाइवल स्टेज 4 में भी 3 से 4 साल है फॉर पीपल हु आर रिस्पॉन्डिंग। 20 से 25% लोग 5 साल के ऊपर जीते हैं। अच्छा. सो our aim here is to not just prolong life But the give quality of life. So add years to life is what is also Add equally years important. to life, Is yes. equally important. So, sir, when it comes to radiation therapy in lung cancer, so what are the most advanced modalities what we are seeing? For lung cancer thing, जब लीजन जो है ट्यूमर का वो अराउंड 5 सेंटीमीटर या उससे कम रहेगा तो वी कैन ऑनली इट एज अर्ली स्टेज डिसीज। उसमें सर्जरी के साथ साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन लोकल ट्रीटमेंट में इज SBRT, स्टेरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन। Yeah. सो Yes. उसमें जो है कि जो टोटल ट्यूमर किलिंग जो डोज है रेडिएशन का वी गिव इन 3 to 5 सेटिंग्स में ही वो खत्म होता है, एक हफ्ते में ही ट्रीटमेंट होता है। इट इज टोटली नॉन इन्वेजिव। सिटी स्कैन जैसा मशीन रहता है लिनैक, उसके अंदर पेशेंट को हार्डली 15 to 20 मिनट्स लेटना रहता है। Okay. उसमें ना करंट लगता है ना शॉक लगता है, कुछ भी नहीं, ही हैज टू जस्ट टू लाई डाउन ऑन द काउच। तो SBRT से जो अर्ली स्टेज में रहेगा, एज सर हाईलाइटेड 80 ना मतलब 80 to 90 तक उसका लोकल कंट्रोल हम लोग को मिल जाता है। देन अगेन जो रेडिएशन एडवांसेस है उसके साथ साथ सो इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी है जिसमें हम लोग स्कैन लेके पेशेंट इमेज गाइडेड यस IGRT। सो उसमें पेशेंट का स्कैन लेके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं प्रिसीजन कि पेशेंट उसी पोजीशन में सोया है, ट्यूमर जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो उसी रीजन में।
न्यूअर टेक्निक इज लाइक 4D CT, 4D CT और सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी SGRT। उसमें क्या रहता है कि 4D CT में हम लोग पेशेंट के विद ब्रीदिंग मूवमेंट, ब्रीदिंग के साथ तो ट्यूमर मूव होगा, करेक्ट, सो लंग का ट्यूमर है, दैट विल बी कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रीदिंग का 10 साइकिल में डिवाइड कर सकते हैं, अच्छा, एंड वी कैन सी कि ईच एवरी फेज में ट्यूमर का लोकेशन क्या है, वो कोरिलेट करके वी कैन ट्रीट इन फेज वाइज, मतलब ब्रीदिंग के 10 साइकिल फेजेस है, हम लोग 3 या 7 में ही ट्रीट करेंगे, अच्छा। टोटल 10 में ही ट्रीट करेंगे, Okay. या तो फिर DIBH रहता है, पेशेंट सांस लेके रोक के रखेगा, एंड एट दैट टाइम इन विंडो ओनली That विल window. ट्रीट, अदरवाइज विल नॉट ट्रीट द With पेशेंट। it's moving. सो इट इज काइंड ऑफ 4D CT, उसके साथ मतलब ब्रीदिंग का टारगेट, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न के साथ ट्यूमर मूवमेंट मैप करके ट्रीट करना, दीज आर काइंड ऑफ न्यूअर थिंग। उससे क्या हुआ है कि रेडिएशन से जो टारगेट हिटिंग है, ट्यूमर को हिटिंग है, वो प्रिसाइजली बढ़ गया है। अलॉन्ग विद दैट नॉर्मल लंग हम लोग काफी तरह से स्पेयर कर पाते हैं, अच्छा, और ऐसा नहीं कि लंग कैंसर हमेशा लंग ही ऑर्गन है, कभी कभी वो हार्ट के नजदीक रहता है, सेंट्रल लोकेटेड, okay. कभी कभी मेजर ब्लड वेसल्स है उनके नजदीक रहता है, कभी कभी रीब्स या पीछे स्पाइन के नजदीक रहता है। एट दैट टाइम वो नॉर्मल ऑर्गन को काफी अच्छा तरह से रेडिएशन से स्पेयर करके वी कैन प्रिसाइजली हिट द टारगेट। So, sir, before we move on to Patil sir, with regards to the chemotherapy part of it or the medical oncology part of it, what role has robotics to play when it comes to lung cancer? रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो है, अभी जब इट कम्स टू लंग एंड हार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती थी मॉर्बिडिटी, क्योंकि जब आप चेस्ट को कट करते हैं या रिब्स को कट करते हैं तो उसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसकी जो मॉर्बिडिटी है, मतलब उसका जो थोरेकोटॉमी का पेन है, वो इंसिजन का पेन 1 साल 2 साल 3 साल तक रहता है। तो दैट वाज द मेजर स्टिग्मा, क्योंकि वो पेन की वजह से बहुत दिन फिर आप की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अभी क्या है ना कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो वैट सर्जरी है, जिसमें छोटे से छेद से हम सर्जरी करते हैं, या फिर रोबोटिक सर्जरी जिसमें बहुत छोटे होल्स के साथ सर्जरी की जाती है, उसकी वजह से ये मॉर्बिडिटी कम हुई है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि थोरेसिक कैविटी ऐसी फ्लैट कैविटी नहीं है, आपकी रिब केज जो है वो राउंडेड है, तो उसका जो अर्गोनॉमिक्स है, तो आप आंखों से देखेंगे तो कुछ पार्ट्स आपको दिखेंगे ही नहीं, जो अच्छा। ऐसे कर्व के ऊपर है, तो वो पार्ट्स आपको आंखों से दिखते ही नहीं। तो ये रोबोटिक सर्जरी में नीचे से जाके कैमरे से हम देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, Okay. ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सभी जगह पे नैरो एरिया में हम जा सकते हैं और मोर प्रिसीजन के साथ वो ट्यूमर्स को निकाल सकते हैं। इसकी वजह से मॉर्बिडिटी जो है सर्जरी की वो कम होगी। अभी पहले देखेंगे तो बहुत बार, जैसे जगदीश सर ने बताया कि SBRT से भी ये ट्यूमर्स को रेडिएट करके ये किया जाता है, क्योर किया जाता है। लेकिन अभी पहले क्या था ना कि वी वर कंपेयरिंग ओपन सर्जरी वर्सेस SBRT, ऐसा कंपेयर करेंगे तो इफ यू सी दिस टू मॉडलिटीज बोथ आर हैविंग देयर साइड इफेक्ट्स। तो सर्जरी की भी मॉर्बिडिटी बहुत थी, और SBRT में भी लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स है उसके आजू बाजू के एरिया में कितना भी आप प्रिसीजन करेंगे तो वो रहेंगे। तो अभी क्या है ना कि रोबोटिक सर्जरी के बाद आपके लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट्स है वो काफ़ी कम हो गए। तो उसके लिए अभी कभी कभी हम थोरेसिक सर्जरी जब करते हैं लंग्स का वगैरह, 2 या 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। सो हॉस्पिटल स्टे हैज़ डिक्रीज, ब्लड लॉस हैज़ डिक्रीज, एंड मोर प्रिसीजन इज देयर इन रोबोटिक सर्जरी। सो रोबोटिक सर्जरी इज वेरी गुड फॉर lung cancer. And post this, it is backed up by the medical oncology and the precision oncology, which is very common and backs up most of the procedures. प्रिसीजन हैज एंटर्ड एवरीवेयर इन ऑन्कोलॉजी। अच्छा। आपका डायग्नोसिस में प्रिसीजन आ गया है। पहले हम सिर्फ हिस्टोपैथ देखते थे, अब हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आगे के टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें प्रिसीजन आ गया है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज में जैसे सर ने बोला, गोरे सर ने, कि सर्जिकल है तो रोबोटिक्स हो रहा है, वैट्स हो रहा है, नॉन इन्वेजिव मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, रेडिएशन में SBRT है, IGRT है, IS, बहुत सारे नए नए टेक्निक्स हैं। कीमोथेरेपी में सिर्फ कीमोथेरेपी पे हम लोग रिलाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग टारगेटेड ओरल थेरेपीज दे रहे हैं, इम्यूनोथेरेपीज दे रहे हैं, which are way beyond what was being done 10-15 years back, and people are not benefiting only in terms of survival, also quality of life. So supportive treatment अच्छा हो गया है, nausea vomiting अभी रेयर हो गया है, माउथ अल्सर्स अभी रेयर हो गए हैं, WBC कम होना, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होना, पेशेंट को
15 साल पहले पेशेंट एक दिन कीमो के लिए और 5 दिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए एडमिट रहता था. अच्छा. आज पेशेंट 4 घंटे एडमिट रह के घर चला जाता है. 3 हफ्ते के बाद ही हमको मुंह दिखाता है फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ कीमो. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन गो होम, गो टू वर्क आफ्टर 3-4 years days of rest. तो दैट इज अ ब्लेसिंग. हर चीज में प्रेसिजन है, हर चीज में टू दी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, एंड क्वालिटी क्वांटिटी बहुत बढ़ रहा है. Okay, sir. So we have spoken about lung cancer, etiology, risk, symptoms, and treatment aspect. Now moving on to the next segment of the podcast, which are myth busters and a few rapid fire questions. So I'll read out one lines for each one of you. I have separate points for each one of you. So let's understand those. Okay. So I'll start with the first myth, and it goes to Patil sir. I think we already discussed it, but still we'll make it again. Only smokers get lung cancer. No. Okay. To Gore sir, surgery for lung cancer spreads the cancer faster. No. Okay. To Schedule sir, radiation burns the skin and leaves permanent damage. ये मैंने बहुत सुना है sir. Okay. So what about? The answer is no. Uh-huh. वो मिथ था, मतलब पहले के ज़माने में जब कोबाल्ट पे, टेली कोबाल्ट पे हम लोग रेडिएशन देते थे, एट दैट टाइम स्किन सरफेस पे ज़्यादा रेडिएशन डोज डिपॉजिट होता था. बिकॉज ऑफ दैट स्किन रिलेटेड टॉक्सिसिटी काफ़ी होती थी. दैट यूज्ड टू बी हैपन 30 years back. अच्छा. But nowadays, recent precision techniques, radiation advances, this is not going to happen with any patient. Okay. Next goes to Patil sir again. If you are diagnosed with stage 4 lung cancer, there is no point in starting treatment. We discussed this. There's a lot of hope. Please come forward to get yourself diagnosed and treated. We have multiple options to choose. Okay. And this goes to the entire panel. Lung cancer is contagious. No. Everybody knows it. No, it is non-communicable disease. Okay. Uh, So another part is that रेडिएशन लेने के बाद पेशेंट को लगता है घर जाने के बाद वो बच्चों के साथ नहीं रह Radioactive हो सकते, जाएगा. रेडियो एक्टिव रहते हैं, खाना अलग से रहना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल इवन मैलिग्नेंसी है तो कीमो के उसको बाद कई लोग कीमो के पूछते हैं बाद कि बच्चों को तकलीफ होगी क्या, उनमें केमिकल जाएगा. नथिंग ऑफ दिस या फिर सॉर्ट. खाना अलग रखना है, कपड़ा अलग रखना है, ऐसे कुछ जरूरत नहीं. you are No not isolation. emitting radiation. No You are physical not isolation and no social isolation is required. Okay. All right, doctors. Come, time for a quick rapid fire now. Can lung cancer occur in people under 40? Yes. Yes. It can. Okay. Is early stage lung cancer curable? Yes. Definitely. Highly curable. Do most lung cancer patients in India come to you only in stage 3 and 4? Yes. 50%. 50%. Even today. Even today. One word to describe working in oncology. It is rewarding. Okay. It's purposeful. It's becoming more and more rewarding. Oh, great, great, great. So, is passive smoking dangerous? We may discuss this. Yes. Definitely. Okay. So, before we end this session today, It's not dangerous, it's also lethal. Achha, it's not only dangerous, it's lethal. So, don't smoke, don't let others also smoke. Yeah. ठीक है. So before we end today's podcast, I wanted to ask: is there any patient who shared any stories with us where all three of you worked on a patient? And why I'm asking this is because it is mostly not understood very clearly the role of all the three verticals of oncology when it comes to treatment of lung cancer. So share some case with us maybe. So I have a 75-year-old gentleman whom we treated almost 4-5 years back, and he 75 presented to us with a similar cough, but his both his sons were very well educated, and they brought him to the nearest doctor very soon. Achha. By the time it was diagnosed, it was a little advanced lung cancer, but it did not spread to any other organ. So we gave him chemotherapy, the tumor shrink. After that, Dr. Gore operated upon this patient. It was a successful surgery. Unfortunately, one of the nodes came positive. So subsequently, he received chemotherapy and radiation. Achha. And 4 years down the line, he is disease free of lung cancer. Arey wow. I mean, that's an achievement. So congrats to all of you. I think this panel is awesome, and I look forward to having you again on some other interesting topic. In future where we can discuss more. I think there are lots to be covered in when it comes to oncology. So any closing statements from you, Vinod sir? या मेनली स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, वही हाथ में आपके, क्योंकि स्मोकिंग से आपके लंग को बर्न मत कीजिए, उसको जलाइए मत. धुआं नहीं रहेगा तो स्मोकिंग नहीं रहेगा तो लंग कैंसर कम हो सकता है, वो आपके हाथ में.
Okay, Shejal sir. And for young generation, stay away from vape, e-cigarette, and advertisement which are misguiding you. हाँ. धुएं की वजह से धुएं में गुम हो जाने से पहले संभल जाइए. So फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. That's an old saying. Today is और नहीं उड़ाना है. irrelevant नहीं today. उड़ाना. Yes. धुएं से फिक्र बढ़ेगा, फिक्र कम नहीं. बढ़ेगा. That Correct. is you. आपका भी और दूसरों का भी. Correct. So that's about that. Thank you once again for coming on this panel. It was Thank you. wonderful. Thank you. Thank I you, think Tushita. thank you, sir, for giving me this opportunity to host all of you, such a big panel. And I think we have covered a lot of aspect in these 2 episodes of this podcast. The first one where we covered almost everything about lung cancer, starting from its etiology and risk, and the second part, of course, we discussed about the treatment part. Yeah. So I'm pretty sure there are a lot of people out there who had certain apprehensions about lung cancer. Those apprehensions are answered today. So thank you once again, and signing off, Dr. Tushita with the DG Panel Oncology. Thank you. Thank you.